Assalamu alaikum and very good morning to all of you. Today the topic for discussion is quality assurance of Pashmina or Pashmina products. So I will not go there. I will straight away come to the quality. What is quality? We say that quality of any product means the level of goodness or badness of its attributes for which the consumer wants to purchase it or utilize it. So one is we need to have a quality product. We have some parameters set in our mind what kind of product it is. So that's the quality of any product for which the consumer wants to purchase it. And quality assurance actually comprises of administrative and procedural activities. Quality assurance comprises administrative and procedural activities implement the quality system so that the requirements and goals for a product, service or activities will be accomplished. So यानी कि we need to make sure that जो हमारे इसमें जो ये जो system है, जो हमारी requirements हैं, whether we are fulfilling it or not, that is a quality assurance. So I'm to say that we need to have a quality in every product, be it a food commodity or non-food commodity. Let us take an example of milk. If we say that milk, we need a quality milk. Quality milk, आपके दिमाग में set parameters हैं and FvSc के standards भी हैं. इसमें fat कितना होना चाहिए, इसमें SNF कितना होना चाहिए. So these are the set parameters in your mind. So we need to have the quality as per those requirements, and those are some implementing agencies. They make it sure that they made that those set parameters should be fulfilled और requirement जो इसकी है वो बराबर होनी चाहिए. That's called as a quality assurance. So in every product we have to maintain the quality of that particular product. We have to assure that those requirements are met. Now as far as the animal fibers are concerned, there are three stages of the animal fiber processing. One is at fiber level, and there is at yarn level, and there is at fabric level. So all the parameters, all the yardsticks are associated with these things. So we will judge those parameters to make sure that whether we are getting a quality product or not. So for example, fiber की बात करेंगे, चाहे वो animal पश्मीना हो या कोई और fiber हो, या wool हो या silk हो या angora हो. So majority of the fiber, there are a number of parameters, but I have enlisted only few parameters which are very important to discuss, as well as upon which the quality parameters are being assessed. Like diameter is there, length, modulation, yield and strength. अगर yarn की बात करेंगे तो linear density, कल भी हम बात कर रहे थे, count की बात कर रहे थे, that's very important. Cross set fibers, number of fibers की बात कर, twist की बात कर, यूनिट आप बोल रहे थे, that's very important. Then strength and evenness की बात कर रहे थे हम कल. तो इस सिमिलरली फैब्रिक में भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम जज करते हैं. अल्टीमेटली वी रीच टू आफ्टर इन टोटलिटी वी रीच टू कंक्लूजन वेदर व्हाट काइंड ऑफ फाइबर वी हैव, what kind of fiber we have, and then what kind of fabric we have, and how we can judge that fabric, and how we can certify that fabric. So if you talk about fiber length, diameter, what is diameter? Diameter means a cross section. Diameter is a diameter of a cross section of fiber. Cross section जो इसमें कितना मोटा है और how thin it is and how thick it is. This is diameter. And diameter plays an important part. Yesterday in yesterday's lecture he was talking about that ये micron का खेल है कि नहीं? तो it plays an important part. One of the prime parameters ये prime parameter हैं. This around 80% of the quality depends upon the fiber diameter. अगर हम quality की बात करेंगे तो because हम पश्मीना के कुछ standards हैं, we say that it should be less than 16 micron. It plays an important. अगर 17 होगा, we will not say it is pashmina, and we will not accept this kind of pashmina. If it is 11, we will say it is very good pashmina because इसका diameter बहुत पतला है, fine है. So it plays तकरीबन 80% के आसपास इस quality parameter की का value है. We can say like that. We give importance to the fiber diameter. 80% importance we give to the fiber diameter.
then we can say more the fineness, better is its quality, and it determines the grade and count. We can grade the wool fiber or we can grade the pashmina fiber on the basis of fiber diameter. हमारे यहाँ अगर wool की बात करेंगे तो हमें पहले ही देखना पड़ता है कि इसका diameter कितना है. Then we can say that इसको हम shawl बनाएंगे, इसको हम puttu बनाएंगे या इसको कोई और shooting shirting का कपड़ा बनाएंगे. So it depends upon that. The end use suitability of the particular fiber depends upon the fiber diameter. So that is the reason I am writing it determines the grade, it determines the count of the yarn which ultimately we are going to prepare. इस पे भी असर पड़ता है. Similarly, length का भी important है. Length is second most important parameter जिसको हम judge करना चाहते हैं. That is one of the important parameter because length also decides the end use. किस में इस्तेमाल अगर छोटा फाइबर पश्मीना होगा अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन अगर उसको जब यार्न बनाते हैं यार्न ज्योमेट्री जब होती है ना स्ट्रक्चर बनता है यार्न का बिकॉज यार्न हैज सम इंपॉर्टेंट रोल उसको ट्विस्ट फाइबर्स ट्विस्ट हो जाते हैं कोहेशन का आ जाता है उनमें ट्विस्ट आ जाते हैं उसको एक यार्न स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम यार्न ज्योमेट्री बोलते हैं उसमें अगर छोटा फाइबर होगा व्हाट दैट विल लीड दैट विल नॉट कम इन द यार्न स्ट्रक्चर तो वो बाहर निकलेगा उसकी वजह से बाद में पिलिंग का इफेक्ट भी आ जाता है ठीक है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जितना लेंथ में फाइबर अच्छा होगा ना दैट इज गोइंग टू हेल्प फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल शॉल की बात छोड़ेंगे हम हमारे यहाँ जो शूटिंग शर्टिंग का फाइन टेक्सचर कपड़ा बनता है फाइन जो हम रेमंड का होता है या किसी और कंपनी का होता है उसमें रिक्वायरमेंट है कि वूल फाइबर की लेंथ होनी चाहिए 6.25 सेंटीमीटर से अबव ठीक है अगर उससे छोटा होगा ना वो उसमें लगता ही नहीं है बिकॉज उन अल्टीमेटली उस शूटिंग शर्टिंग का जो फिनिश होता है स्मूथ टेक्सचर होता है वो इसमें आ जाता नहीं है तो वो हमारे वाले का वूल जो उससे 6.25 सेंटीमीटर से कम होता है वो यूज दैट इन द वूलन सेक्टर वूलन से हम पुट्टू बनाते हैं हम स्वेटर्स बनाते हैं ठीक है हर एक फैब्रिक का अपना अपना रिक्वायरमेंट सिमिलरली अगर पश्मीना की लेंथ कम होगी ना 4 सेंटीमीटर 3.5 तो हमारे को प्रॉब्लम हो जाएगी लेकिन अगर वो 5 6 के आसपास होगी तो इट इज गुड लेंथ प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट सो इट इज क्रिटिकल फॉर प्रोसेसिंग एज इट डिटरमाइंस द मिनिमम नंबर ऑफ फाइबर्स पर क्रॉस सेक्शन ऑफ द यार्न so this is an important parameter similarly we have another parameter that is called medullation का आपने सुना होगा कि how medulla looks medulla means it is a present medulla is considered as an that we will show you in the today in the practical classes आपको medulla दिखाएंगे फाइबर में कैसे होता है ठीक है medulla में क्या होता है कि medulla is considered as an undesirable structure ठीक है undesirable thing in the fibers for example it is a hollow space in the fiber hollow space which is being occupied by air that means when something is hollow it is very weak so what it happens if we will use medullated fiber in processing what will happen it will have a lower carding yield it will increase resilience lower spinning efficiency lower dyeing ability and harsher handle यानी कि आपका फैब्रिक जो होगा वो आपके हाथ में हार्श दिखेगा इट विल हैव अ हार्श हैंडल उसको हम बोलते हैं वो मैं कभी एक्सप्लेन कर दूंगा सो इट इज अनडिजायरेबल फॉर प्रोसेसिंग दैट्स द रीजन व्हाई we remove guard hairs before processing of pashmina. Guard hairs are all medullated fibers, है ना? We are supposed to remove those because we cannot add those fibers in the fine fibers and process them because why? They will break. They will have a less processing yield and it will create a problem for us. Okay? So that's the reason. And on the base of medulla kitna present hai, I will show you in the laboratory those pictures and in the microscope. We can divide them into true fibers, stereofibers, hairy fibers, cave fibers. So these are all undesirable as far as the pashmina processing comes. That's the reason why we remove guard hairs while processing of pashmina. Similarly, yield is an important part. Yield क्यों हम बोलते हैं yield में यहाँ पे मैं जनरल फाइबर की बात कर रहा हूँ तो yield इसलिए important है how will what's the yield जब हम उसको साफ सारा करेंगे प्रोसेसिंग के टाइम पे इसका yield अगर हमारे पास 10 kg वूल होगा या 10 kg पश्मीना होगा वंस वी प्रोसेस हमारे हाथ में कितना आएगा दैट्स कॉल्ड एज yield कितना टोटल में yield आएगा क्योंकि उसमें हम इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं we sometimes wash पर यहाँ पे तो हम करते नहीं बट लेह में एंड अदर कंट्रीज दे आल्सो स्काउर पश्मीना आल्सो अदरवाइज
जब हम ट्रेडिशनल तरीके से करते थे हम पश्मीना इस्तेमाल, वी नेवर यूज्ड टू स्कॉवर दैट पश्मीना, बट नाउ इट्स बीइंग स्कॉवर्ड। जो इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, ग्रीस होता है, स्वीट होता है, या कोई इम्प्योर डस्ट डर्ट, वो रिमूव करने के व्हाटएवर वी आर गेटिंग दैट इज कॉल्ड यील्ड। को यील्ड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर फॉर एग्जांपल हम 1 क्विंटल पश्मीना खरीदेंगे, उसके बाद उसको 50 केजी निकलेगा, बेस ने दूसरे में निकलेगा 80 केजी को, यानी कि हमारे को यील्ड में फायदा, बात समझ लॉस है। सो जितना यील्ड ज्यादा होगा उतना हमारे लिए फायदा होगा। अब दिस इज लीनियर डेंसिटी, ये यार्न की बात मैं करूंगा। यार्न में हमारे को क्वालिटी पैरामीटर्स कौन से एसेस करने हैं, लाइक लीनियर डेंसिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। लीनियर डेंसिटी अगर हमें किसी चीज को डायमीटर करना होगा तो दैट इज वेरी इजी, बट अगर ऐसा स्ट्रक्चर यार्न जैसा स्ट्रक्चर, उसमें डायमीटर मेजर करना बड़ा मुश्किल है। सो उसमें हम वी कैन से दिस थिकनेस ऑफ द यार्न, काउंट जिसकी हम बात कर लीनियर डेंसिटी, बट we have to use some indirect methods. We have to measure the weight of the specific length of the yarn, or we have to measure the length of the specific weight of the fiber. That is the indirect method. Direct method is how we can assess the count of the yarn. For example, count में हम क्या करते हैं, metric count की बात करेंगे। आप बोलते हैं 140 काउंट है, what does that mean? जो पश्मीना प्रोसेसर है, किसी को पता है? 140 मींस थ्रेड का थिकनेस कितना है ना, कैसे करते हैं, क्या होता है प्रोसेस नहीं पता। आप बोलो, आपको पता है? आपको पता है? आपको 140 काउंट मतलब हुआ 1 ग्राम से, ये समझ के रखना, 1 ग्राम से आप बना सकते हो 140 मीटर्स ऑफ यार्न। 1 ग्राम से, समझा कि मेरी बात? 140 मीटर। हाँ, अगर मैं बोलूंगा आपका 120 काउंट है, तो व्हाट डज इट मीन? 1 ग्राम से 120 मीटर्स ऑफ यार्न आप बनाते हो। अब मोटा कौन सा होगा? 120 मोटा। 1 ग्राम से आपने 120 बनाया, 1 ग्राम से आपने 140 बनाया, मोटा कौन सा होगा? 120 वाला मोटा होगा। वूल, एक पश्मीना में ऐसा होता है। अगर वूल की बात करें 40-50 के आसपास काउंट हम बोलेंगे 40 काउंट, यानी कि 1 ग्राम वूल से हमने 40 मीटर्स ऑफ यार्न बनाया। दिस इज वन ऑफ द यूनिट जो कि आजकल इस्तेमाल होता है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक काउंट की वजह से इसको काउंट बोलते हैं, अदरवाइज इट इज मैट्रिक काउंट। हम इसको इस यूनिट में एस करते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसकी वजह से आप विच प्लेज इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं ना गेम खेलना, दिस इज द गेम, यानी कितना काउंट आपका यार्न बना उतना ही आपका फैब्रिक भी फिनिश्ड बन जाएगा। अगर मोटा बन जाएगा तो मोटा फैब्रिक बन जाएगा, अगर पतला और उसका वेट भी ज्यादा होगा, उसका कोर्स टेक्सचर होगा। लेकिन वंस इट इज वेरी फाइन यार्न तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट, ठीक है। दैट वाज द रीजन व्हाई ट्रेडिशनल तरीके से जब चरखे में पश्मीना को स्पिन किया जाता था, इट वाज वेरी फाइन। इट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ दोस वुमेन फोक। 120-130 वो हाथ से करते थे, ठीक है। अब आजकल मशीन्स आई है, तो मशीन में हम वी कैन मेक सम सेटिंग्स अदर थिंग्स, एंड उसमें कैरल फाइबर डालने के बाद वी कैन मेक दोज यार्न। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अब इसके अलावा टैक्स एंड डैन उनकी तरफ हम जाएंगे नहीं, तो वो हम इसमें उसमें नहीं जाएंगे। एक्सप्लेन जस्ट So this is very important. So then a few other units are there, taxes there, gain areas there, वो मैं आपको वही क्लास में, but it is you got what I mean to say, what is 140, one is 120, 160, this thing, okay. मतलब जो जितना ज़्यादा काउंट होगा उतना फाइन यार हमारा बनता है। That it means it is actually the length of a yarn divided weight, ठीक है। टैक्स में जो होता है, टैक्स इज रिवर्स ऑफ दैट, एंड देयर इज लेंथ, स्पेसिफिक लेंथ मींस 1 मीटर, 1 लेंथ में 1000 meters, 1000 meters of the yarn, how much fiber is required to make 1000 meters of yarn? That's tax. How much fiber is required to make 1000 meters of yarn? That's reverse of count, ठीक है। काउंट में थोड़ा सा रिवर्स है। So but आजकल हम काउंट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, काउंट is okay. So it means how many meters of the yarn will be prepared from 1 gram of fiber, okay? So it influences the quality and performance factor. इसके अलावा ट्विस्ट की बात, जब हमारे पास यार्न भी आ गया, अब जब यार्न हम बनाते हैं, यार्न के टाइम हम ट्विस्ट जो देना जरूरी पड़ता है, ट्विस्ट, है ना। जब हम उसको स्प्रिंग करते हैं, वही गो फॉर ट्विस्टिंग। क्यों हम ट्विस्ट करते हैं? ट्विस्टिंग की किस लिए जरूरत पड़ती है? मजबूती के लिए, बिकॉज वन इज वी गो फॉर गिलिंग एंड अदर प्रोसेस, उसमें ट्विस्ट भी लगता है और कोहेशन भी स्ट्रेचिंग भी होती है, कंप्रेसिबिलिटी भी होती है एट द सेम टाइम, to give a strength to the yarn, okay, to give a, जब हम उसको strength देते हैं, तो this is twist। आप इसमें twist कितना दिया, ठीक है,
ये डिपेंड किया आपके फैब्रिक पे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपका जो स्वेटर होता है, स्वेटर में आपने बल्कि स्वेटर, ये मेरी स्वेटर है, बल्कि स्वेटर, इसमें ट्विस्ट कम लगा होगा और यार्न जो होगा वो थर्ड होगा, वो बल्कि होगा, ठीक है। बल्कि होने से क्या होगा, इसमें एयर आ जाता है, एयर इज इंसुलेटर, है कि नहीं। तो व्हाट विल हैपन, मेरे को वी यूज टू वियर बल्कि स्वेटर्स, बल्कि जैकेट्स या एनीथिंग इन द विंटर, व्हाई इट ऑक्युपाइज एयर एंड आपको सर्दी नहीं लगती है, ठीक है। तो ट्विस्ट इसमें कम होता है, लेकिन जब आप फाइनर टेक्सचर के फैब्रिक्स बनाते हैं उसमें उसके जो यार्न होता है उसमें ट्विस्ट ज़्यादा लगता है, तो इट बिकम्स वेरी फाइन, उसमें ये तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिवटल रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ yarn as well as functionality and durability of finished product. It binds the fibers together and helps to keep them in a respective position, thus giving coherence to the fiber yarn. Contributes towards the strength of the yarn. This is very important. Then fibers per unit. कितने आपके, अगर आपने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 इंच लेंथ ऑफ यार्न है, उसमें कितने फाइबर्स आ गए, उसमें कितने फाइबर्स आ गए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनेस ऑफ द फाइबर, पहले कितना फाइन फाइबर होगा उतना आपको 1 सेंटीमीटर में उतने फाइबर्स ज्यादा आ सकते हैं। सो इट डिटरमाइंस स्ट्रेंथ, इट डिटरमाइंस इवननेस की बात करूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कल भी हमने डिस्कस किया था, इवननेस। इट डिटरमाइंस हैंडल, व्हाट इज हैंडल मींस हाउ यू विल feel, once you will take a fabric in your hand, what feeling it will give to your hand, ठीक है, whether it is rough, whether it is smooth और rough, इसका टेक्सचर कैसा है, that is called as a handle, इसको हम बोलते हैं subject to method of assessment, it's called handle. So it plays an important part in handle, it plays an important part in insulating capacity, इसकी मैं भी बात कर रहा था, कितने फाइबर्स आपके यार्न में आ गए, उनमें गैप्स आ गई। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर आपको 5 यार्न फाइबर्स ने बनाया, वहां पे एरिया, तो 5 यार्न के बीच में गैप कम रही ना, तो ईयर कम आ जाएगा। अगर वहां पे 10 फाइबर्स होंगे तो गैप भी ज्यादा आ गई और वहां पे ईयर भी आ गई, तो इट हेल्प्स इन इंसुलेटिंग कैपेसिटी। सो दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्ड, ब्रेकिंग रेट पे असर पड़ता है, अगर फाइबर्स ज्यादा होंगे तो, या एंड स्टिफनिंग लिमिट, सो अगेन इन्फ्लुएंस द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस यार्न। अब यार्न इरेगुलरिटी की बात हम करेंगे। Yarn irregularity, what is yarn irregularity? How uniform your yarn is और non uniform कितना है, मतलब कल भी हम बात कर रहे थे कि जब हम ये GI की बात कर रहे थे कि इसमें हम GI मशीन हैंड स्पिनिंग GI देने के लिए हमें किन पैरामीटर्स पे जोर देना पड़ता है। उसने वहाँ पे इम्पोर्टेंट बोला कि यार्न की यूनिफॉर्मिटी कैसी होती है, और he said that कि मशीन स्पिनिंग में यार्न यूनिफॉर्म रहता है 99% टाइम्स, बट हेड स्पिनिंग में देयर आर ह्यूमन एरर इज देयर, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। दिस इज कॉल्ड यार्न इरेगुलरिटी। अब हमको देखना है कि कितना इरेगुलर है, ठीक है, कितना इरेगुलर है। अभी काउंट आपने मशीन में डाल दिया, हमको कितना काउंट चाहिए वो आपको पता है, ठीक है, या हैंड से कर दिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो दैट विल हैपन। बट कभी कभी क्या होता है, किसी जगह पतला आ जाता है यार्न, ठीक है, किस जगह मोटा आ जाता है, किस जगह और मोटा आ जाता है, जो मैंने कल बात कर रहा था। अगर पतला आ गया उसको हम बोलते हैं थिन प्लेस। क्या बोलते हैं? थिन प्लेस मतलब क्या को, इट इज लेस 50% लेस देन द एवरेज थिकनेस ऑफ द यार्न, ठीक है, 50%। अगर 50%, if it is 50% more than the average thickness of the yarn is called as thick place। और नेप बोलते हैं it is more than 200 times more than the average thickness of the yarn। These all are undesirable. Why? When there is a thin place, what will happen? The yarn will break. जब उसको हम स्टिफनिंग वगैरह करें या वीविंग करें, it will break. And when it is thick place and it is napped, it will be reflected in the final structure of the fabric। तो आप देखोगे, आपने हम जब घर में पुट्टो पहनते किसी जगह मोटा दिखता है कि यार ऐसा वहाँ पे मोटा होता है, that is nap, ठीक है। इधर कुछ अगर शॉल में ऐसी चीजें आ जाएगी, इट इज अनडिजायरेबल एंड पीपल विल नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग। आपने देखा होगा, है कि नहीं, जब आप शॉल बेचते हो, आप यू आर डीलिंग विद द पश्मीना इंडस्ट्री, पश्मीना शॉल मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग, वन पीपल ओपन दिस शॉल एंड दे हैव अ लुक, है ना, किसी जगह कोई डिफेक्ट आ गई, नहीं चलेगा, इसमें डिफेक्ट नहीं। हाउ इट हैपेंस, बिकॉज द यार्न इरेगुलरिटी इज देयर, ठीक है। सो व्हाट वी डू एंड व्हाट विल हैपन बाय दैट, एक तो डाइंग एबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। डाइंग, आप डाई कर रहे हो पूरे फैब्रिक के साथ, लेकिन जहाँ पे नेप होगा वहाँ पे शेड डिफरेंट आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग देयर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो
डिफेक्ट्स आ जाते हैं फैब्रिक में हमारी, द फॉर्म स्ट्रीक्स, स्ट्राइप्स, इट इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज हमारे को यार्न में डिफेक्ट। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जैसे डायमीटर वहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यार्न की क्वालिटी एसेस करने के लिए, क्वालिटी को एश्योर करने के लिए। देन टेंसाइल प्रॉपर्टीज, टेंसाइल प्रॉपर्टी मीन्स स्ट्रेंथ, इजंट इट, स्ट्रेंथ। हम स्ट्रेंथ को चेक करते, ज़्यादा मैं इसमें नहीं जाऊँगा। सो strength is very important, again strength is very important, strength is again very important because once you have a yarn, for example yarn की बात करूँगा, उसी yarn को आपको डालना है किस पे, you need to put that in a on a loom, है ना, loom पे मैकेनिकल फोर्स अच्छा खासा होता है, अगर yarn strong नहीं होगा तो वो ब्रेकेज आ जाएंगे, है कि नहीं, बहुत सारी ब्रेकेज आ जाएंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, influence the quality of fabric also, वो मैं जाऊँ आगे आऊँगा। Ultimately what is yarn? Yarn की जो properties होंगी that gets reflected on the qualities of the fabrics itself। So यहाँ पे मेरे कुछ एक दो पैरामीटर्स हैं जिसको हम ये करते हैं। breaking load, breaking load मतलब को कि how much weight the yarn will withstand before break। इस तरह वजन, हम उसको वजन डालेंगे, किसको, yarn को हम वजन डालेंगे, खींचेंगे, अपनी ताकत से खींचेंगे, तो हाउ मच वेट इट कैन विथस्टैंड बिफोर ब्रेक, दैट्स कॉल्ड ब्रेकिंग लोड। फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी सैंपल का, यार्न के सैंपल का आगे भी हम करेंगे इंशाल्लाह, हम आज या कल प्रैक्टिकल वहाँ पे, अगर आपके यार्न में आ गया 400 ग्राम्स, फॉर एग्जांपल इसका आ गया 400 GF ग्राम फोर्स, इसका मतलब हुआ कि ये 400 ग्राम को का बार बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, 401 करेंगे ये काट जाएगा, ठीक है, समझा कि मेरी बात, दिस कार्ड इज ब्रेकिंग लोड, ठीक है। सिमिलरली इलोंगेशन परसेंटेज कितना इलोंगेट हो जाएगा बिफोर ब्रेक, जब कुछ टेंसाइल प्रॉपर्टी टेनासिटी हम बाकी प्रैक्टिकल के टाइम डिस्कस करेंगे। सो इन शॉर्ट टेंसाइल प्रॉपर्टी प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, नाउ कमिंग टू फैब्रिक्स, फैब्रिक भी आपको सारा पता है, ऑलमोस्ट यू आर डूइंग डीलिंग विद दिस थिंग। जीएसएम तो सिंपल है, पता क्या होता है जीएसएम, फैब्रिक की थिकनेस नहीं, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, मतलब वो क्या हुआ, कितने ग्राम एक स्क्वायर मीटर में होंगे। हाँ, एक स्क्वायर मीटर का फैब्रिक, आपने एक पीस लिया है, एक साइड से इसका लेंथ 1 मीटर है, इसकी विड्थ 1 मीटर है, इसका ग्राम्स में कितना वेट आ रहा है, ठीक है, ग्राम्स में कितना, जो तो दिस इज कॉल्ड जीएसएम। जीएसएम इंजीनियरिंग, जब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बिकॉज दे फोरसी द थिंग्स, दे उसको पता है कि मेरा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होना चाहिए उसका जीएसएम कितना होना चाहिए, है कि नहीं, जब वो फैब्रिक बनाएगा उसको पता होना चाहिए मुझे लास्ट में मेरा फैब्रिक कितने ग्राम का बनेगा। तो ही हैज टू सी ऑल द थिंग्स, ही हैज टू सी द फाइबर कैसा होना चाहिए, उसका यार्न कैसा होना चाहिए, यार्न का काउंट कैसा होना चाहिए, यार्न फैब्रिक बनाने के टाइम पे डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, एंड्स कितने होने चाहिए, पिक्स कितने होने चाहिए, वो सारा का सारा जब रिफ्लेक्ट होगा दैट विल बी रिफ्लेक्ट इन द फॉर्म जीएसएम, यानी फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट में ग्राम ये कितना आ जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैब्रिक, इनको टाइप ऑफ फाइबर कौन सा है, काउंट ऑफ द यार्न कौन सा है, डिजाइन ऑफ द यार्न कैसा है, डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसी है, फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स कैसे आपने किए। सो दिस इज कॉल्ड जीएसएम, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ जीएसएम कितना होता है पश्मीना में, शॉल में, डू यू हैव एनी आइडिया, मुझे याद नहीं, आप बोलिए। तो आप टोटल इसका वेट देखते हो, ठीक है, उसमें एक्चुअली शायद 90 समथिंग होता है पर स्क्वायर मीटर, कुछ ऐसा ही है, तो वो देखेंगे, ठीक है, लेट अस सी। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन। देन थिकनेस अगेन, थिकनेस होता है, जो हमने बोला जीएसएम, दैट इज थिकनेस, मोटा कितने कितना ये थिकनेस है फैब्रिक की थिकनेस, इट इज बीइंग नॉर्मली जजड बाय द थिकनेस गाज, ये तकरीबन लेस देन 0.1 mm 0.2 mm आता है शॉल वगैरह, पश्मीना शॉल में। अगर हम पट्टू की बात करेंगे तो वो तकरीबन 1 mm के आसपास आता है ना। सो इट डिपेंड्स, इट इज़ अ बेसिक थिंग एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑन इट्स वार्मथ, हवीनेस और स्टिफनेस, है कि नहीं, यानी कि आपका हवीनेस या लाइटनेस कितना पर डिपेंड, इट विल डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ द या फैब्रिक ऑल्सो, कि हमारा फैब्रिक हेवी होगा कि हमारा फैब्रिक ये लाइट होगा। एग्जाम चलो, तो दिस हाउ इट विल हैपन, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। हाँ, एंड स्पिक्स, क्या होता है एंड स्पिक्स, पता होगा आपको, एंड्स और पिक्स पता है, वार्प पता है, वार्प में जो थ्रेड्स होते हैं ना, वार्प में जो थ्रेड्स, इंडिविजुअल थ्रेड ऑफ द वार्प इज कॉल्ड एंड्स,
and individual thread of the weft is called pix. वाप में जो थ्रेड्स होते हैं उनको बोलते हैं एंड्स और उनको बोलते हैं पिक्स. यही होता है इंपॉर्टेंट जब आप डेंसिटी की बात करते हैं, आपको कितने थ्रेड्स डालने हैं पर सेंटीमीटर या पर इंच. जब आप ये वार्प बनाते हो, वार्प जब बनाते हो उस वक्त आपको ये जो वीवर होता है या जो ये स्पिनर होता है या सॉरी वीवर होता है वगैरह, उसको पता है कि मुझे कितना डालना है इसमें. और जब वो उसको लूम पे चढ़ाता है, उसके बाद जो वेफ्ट थ्रेड्स डालता है ना, उसको पता है मुझे कहाँ कितना इसमें डालना है. वो टाइट करता है, उसको टाइट करते हैं या लूज रखता है. ठीक है, तो जब वो बात करता है वो बोलता है कि मुझे कितना इसको इंच में रखना है, 50 रखना है कि 60 रखना है या 70 रखना है. अगर 750 बोला उन्होंने, मैं 1 इंच में 50 थ्रेड्स डालूंगा, ये लूज बन जाएगा फॉर एग्जांपल. अगर 60 डालेगा उसी 1 इंच में तो ये टाइट बन जाएगा. अगर 70 डालेगा वो टाइट बन जाएगी. तो ये टाइट बन गई, जब ये फैब्रिक टाइट बन गया है ना, तो ये अल्टीमेटली ये फैब्रिक हेवी भी हो जाएगा. है कि नहीं. हमारा पुट्टू होता है फॉर एग्जांपल, हम विल हैव अ पुट्टू इट इज नॉट सी थ्रू. कपड़ा सी थ्रू नहीं होता, सी थ्रू मच जैसा कि, या उसके अगर कंट्रास्ट देखो है दुपट्टा, दैट्स सी थ्रू. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू फैब्रिक्स? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्ट. इट डिपेंड्स अपॉन आपका जो यार्न है उसका काउंट कितना है, उसका मटेरियल कैसा है, जब आपने इसको वीव किया तो कितना टाइट किया, कितना लूज किया. So it depends upon number of things. That is what ends and picks mean. Okay, so this plays an important part while you design the fabric. ठीक है, while you have in mind what kind of shawl, what kind of pashmina product you want to prepare. ठीक है, this is important parameter. Air permeability. Air permeability क्या हुआ? How much air will pass? The ease with which the air will pass through. Amount of air passed out the surface under certain pressure different in unit time. ठीक है, it is measured by the ease with which the air passed through the material. It's very important. Not in pashmina, I mean, it is shawls में तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता, but this is important parameter, air permeability. How much air, the ease with which the air will pass through the, क्योंकि छने के साम दबा इस कपड़े में मुझे इसमें ये suffocation हो गई, कपड़े में suffocation हो गई. ठीक है, या कोई होता है कि ये कपड़ा जो है it is very comfortable, it gives very comfort, क्योंकि हवा आ जाती है. सो दिस इज एयर परमेबिलिटी. हर एक फैब्रिक में हम एयर परमेबिलिटी भी चेक करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ द एयर पास हो रहा है ओवर ए सरफेस. ठीक है, अंडर ए सर्टेन प्रेशर डिफरेंस इन ए यूनिट टाइम. इतने टाइम में इतनी सरफेस से कितना प्रेशर पास हो, कितना एयर पास होता है अंडर सम specific pressure. That is called as air permeability. This is a very important parameter, and again जो मैंने अभी आपको बोला, it depends upon the it will depend upon the fabric structure आपने कैसा रखा, डिजाइन कैसा रखा, and the picks कितने डाले, twist उस यार्न में कितना था, काउंट उस यार्न का कितना था, एंड स्ट्रक्चर टाइप ऑफ द यार्न कौन सा था. सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हर एक चीज. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टोटलिटी में हम जब क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं, ऑल द पैरामीटर्स हैज टू बी टेकन केप्ट इन माइंड. ठीक है, दिस इज हाउ इट विल हैपन. थर्मल प्रॉपर्टीज, अगेन कंफर्ट. हमारे लिए कंफर्ट होता है ना, वी वियर क्लॉथ्स फॉर सम पर्पस, वी नीड हैव सम कंफर्ट. सो सिमिलरली थर्मल तरीके से हमारे को कंफर्ट मिलना चाहिए. ना तो गर्मी होनी चाहिए, ना तो सर्दी लगनी चाहिए. ठीक है, दिस का दिस फिजियोलॉजिकल कंफर्ट ऑफ द फैब्रिक. सो इट विल डिपेंड अपॉन आपका फैब्रिक कैसा है, फाइबर कैसा था, फाइबर की अरेंजमेंट जब यार्न बनाया तो कैसा बनाया, यार्न प्रॉपर्टीज कैसी रही, फैब्रिक स्ट्रक्चर जब बनाया तो कैसे बनाया, फैब्रिक थिकनेस कैसी रही, कितनी रखी आपने उस टाइम जब बनाया, बल्क डेंसिटी उसकी कितनी थी, compressibility, finishing treatment, clothing. So it will depend upon these factors. Then you will get the comfortable thermal properties. It is being normally judged by thermal conductivity. यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़ा पहना है तो मुझे ये कपड़ा ऐसा होना चाहिए, इट शुड नॉट अलाउ द इनर हीट टू पास थ्रू आउटवर्ड्स आउटसाइड, एंड इट शुड नॉट अलाउ द कोल्ड टू एंटर. दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल रेजिस्टिविटी. दिस द पैरामीटर्स व्हिच विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स. जो मैंने अभी आप बात की, फाइबर की भी प्रॉपर्टीज की बात की और यार्न की प्रॉपर्टीज की बात की, और फैब्रिक बनाने के टाइम पे भी मैंने बात, तब जाके आपको कंफर्ट मिलेगा इन द फॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी. बिकॉज अभी हम बात कर रहे थे कल से कि ये जो पश्मीना है ना, पश्मीना बाय नेचुरल तरीके से कि ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी खासी है, यानी कि इट गिव्स वेरी गुड वार्मथ.
So यानी कि thermal conductivity, thermal properties of the fabric will depend on the fiber itself. है कि नहीं? या in comparison we will keep cotton और पश्मीना की ना वार्मथ में बहुत फर्क है, ठीक है? So it depends on that, it depends on the how you will make yarn, it depends on how you will make the fabric. ठीक है? समझा रहे मेरी बात? The drapeability, drape पता है किसको? Drape, yeah, drape. एक फैब्रिक अपनी वेट पे कितना हैंग हो रहा है? ड्रेप चले अगर मैं मिस्त्री कसो सस्ता ना बाजार से बनाने से आता है जी ड्रेप आसे तो जी फॉल आसल फॉल मींस ड्रेप मींस फॉल. इसको हम बोलते हैं इट इज डिफाइंड एन एक्सटेंट टू व्हिच अ फैब्रिक डिफॉर्म्स व्हेन अलाउड टू हैंग अंडर इट्स ओन वेट. फैब्रिक को हम ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है ना, वी अलाउ इट टू हैंग, ठीक है, ऑन अ सेंट्रल एक्सिस. What kind of deformation there will happen, what kind of shape it will form, that is called drape. एक कपड़ा ऐसा होता है जो डिजायरेबल नहीं होता है, या we can say depends, आपने वो फैल जाती है जब इसको हंग किया ना, ठीक है, ये फैल जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात. दूसरा होता है जो कि बॉडी के साथ चिपक जाता है. मैंने लगाया फैरन लगाया, मैंने फैरन मेरे शोल्डर्स पे, ठीक है. एक फैरन ऐसा होता है जो कि चिपक जाता है, दूसरा होता है जो कम ठीक है, तीसरा होगा ऐसे फैलेगा जैसे फॉर स्कर्ट गर्ल्स में होता है. हाँ एक्चुअली वही जैसे हाउ इट विल ड्रेप. जैसे ये वाला कपड़ा है, ये है, दिस इज हैविंग लाइक लिटिल बिट गुड फॉल, बट अगर दूसरा कपड़ा होता है वो नीचे से फैल जाता है, ठीक है. दैट या स्कर्ट की बात करते हैं, स्कर्ट जो पहनते हैं तो दैट इज समटाइम्स स्कर्ट का जो है लोअर डायमीटर वो फैल जाता है. दूसरा होता है जो चिपक जाता है. दिस डेट हाउ इट विल शेप, व्हाट शेप इट विल गिव वंस वी विल पुट इट ऑन द एक्सिस. दैट इज दिस का ड्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. वो अगेन इट विल डिपेंड अपॉन कैसे कपड़ा आपने यार्न कैसा था, यार्न की ज्योमेट्री कैसी थी, फैब्रिक कैसा आपने बनाया, ठीक है. इट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ थिंग्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट because it presents aesthetics and functionality of both the fabric and the garment. It's very important. Pilling भी हम इंशाल्लाह करेंगे ऊपर. पिलिंग को बोलते हैं ना फेक बॉबलिंग होना. So it is an undesirable characteristic, होना नहीं चाहिए फैब्रिक में. It is an undesirable characteristics. So generation of pills over the surface of the fabric during washing, dry cleaning and wearing, that is called as pilling. ठीक है, पिलिंग होती है. It is a fault and is considered a serious problem. तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पिल आ जाता है या नहीं आ जाएगा, ठीक है. लाइक फाइबर की प्रॉपर्टीज भी इस पर इफेक्ट करती हैं. इसकी लेंथ जो भी मैंने बात की, मैंने क्या बोला आपको, जब आप छोटे लेंथ का फाइबर बनाएंगे. पहले पिल्स कैसे होते हैं, पिल्स होते हैं यू थी कहाँ फाइबर नहीं आ रहा, फाइबर का कोई एज यार्न ज्योमेट्री से बाहर निकलता है. हमने यार्न बनाया, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री से एक फाइबर निकला बाहर, दैट वो सरफेस पे आ गया, ठीक है. दैट बिकम्स ए नाइडस फॉर द पिल फॉर्मेशन, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात. वही स्टार्ट हो जाता है पिल फॉर्म कर. वो अगर लेंथ इस फाइबर कम, इसलिए हमसे यार्न बनो तो डेफिनेटली हमारे को क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, पिल ना बन जाएगा, ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ क्रिप्टनेस, फाइनेस. देन इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटीज ऑफ यार्न, लीनियर डेंसिटी उसकी कितनी है, ट्विस्ट कैसा था, फैब्रिक पे भी डिपेंड करता है. तो सो दिस इज वेरी अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स. तो इंशाल्लाह हम ये कर लेंगे प्रैक्टिकल्स में. आज ही इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट. उसके बाद प्रैक्टिकल 2-2.5 घंटे हम प्रैक्टिकल करेंगे. उसमें हम दिखाएंगे आपको कि जब हम फैब्रिक की ये पिल वगैरह करते हैं, इसको नहीं, वी सिमुलेट द थिंग्स इन द मशीन. उसके बाद हम उसको ग्रेड करते हैं. इसमें पिलिंग ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. सो आप उसके ऊपर ग्रेडिंग दे सकते हो, कपड़े की ग्रेडिंग कर सकते हो. एब्रेशन अगेन इज अ वेयरिंग अवे ऑफ एनी पार्ट ऑफ मेटल बाय रबिंग अगेंस्ट अंदर से. हम एब्रेशन मतलब को क्या बना क्वेश्चन पर क्या बना ये नहीं, ये एवरेज बना या टन नहीं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ उसको दैट इज कॉल्ड एब्रेशन, यानी कि वेयरिंग अवे ऑफ एनी पार्ट ऑफ द मटेरियल बाय रबिंग अगेंस्ट अ सरफेस. इसको भी हम देखते हैं कि किस कपड़े में ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है. अगर कोई कपड़ा ऐसा हो जो इसको 2 बार घिसाएंगे कट जाएगा यहाँ पे ना, तो दैट वी से दिस इज नॉट ड्यूरेबल, इसमें एब्रेशन बहुत ख़राब है.
तो अगर कोई कपड़ा ऐसा है कि अगर उसको बहुत घिसाएंगे भी तब भी वो कपड़ा वैसा ही कि वैसा ही रहेगा, यानी कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। सो अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द आपका यार्न स्ट्रक्चर कैसा था, आपने फैब्रिक बनाने के टाइम पे कैसा किया था, तो इट विल डिपेंड अपॉन दैट। सो दीज पैरामीटर्स रिफ्लेक्ट द वे यू हैव प्रोसेस्ड द फाइबर। अदर पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट है उनकी तरफ भी हम ध्यान दे देंगे प्रैक्टिकल्स के टाइम पे। फास्टनेस प्रॉपर्टीज, जब हम डाई करते हैं किसी फैब्रिक की, हम डाई कर या यार्न की फैब्रिक, तो वी विल सी कि ये रंग मत द्राव वापस किए, रंग मत डाई मत निकला। अगर डाई जल्दी निकलेगा वी से दैट द फास्टनेस प्रॉपर्टी ऑफ दिस कलर इज नॉट गुड, इट इज वेरी बैड, इज इट? तो हम ये एसेस करते हैं। जब हमने ये एसेस कर तो ये हम कैसे सिमुलेट करते हैं, वी से फास्टनेस प्रॉपर्टी टू लाइट, यानी कि लाइट से कितना कलर निकल गया, ठीक है, धोने वॉशिंग से कितना कलर निकल गया, रबिंग से कितना कलर निकल गया। ये आपके शॉल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वन इज यू डाई दोज फैब्रिक्स, पश्मीना फैब्रिक्स, अगर उसमें डाई निकल गया तो आपका सारा का सारा खराब हो गया। या अगर उसे यार्न छू करना सोच नहीं का चले करना थर्ड वगैरह लगा, अगर तहद्रा रंग, एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, आपको रंग नहीं ब्यागो रंग लागन बेस का पालवस, तस वना जिस स्टेनिंग का, क्या बोलते हैं स्टेनिंग, एक हुआ फेडिंग, दूसरा स्टेनिंग। फेडिंग हुआ कि कपड़े से आपका कलर निकल गया, स्टेनिंग को दूसरे कपड़े का कलर आपके इस पहले वाले कपड़े में आ गया, इसका स्टेनिंग। और स्टेनिंग सबसे घटिया चीज है, क्यों? गैर वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, उसमें एक बिल्लू दुपट्टा गया, बिल्लू दुपट्टा, मेरे सारे व्हाइट कपड़े खराब हो गए, वो बन गए ग्रीन, बिल्लू दुपट्टे में नहीं ग्रीन, तो दैट इज, सो दिस इज मोर डेंजरस देन फेडिंग। फेडिंग को तो हम पहन भी सकते हैं ना, फेड थोड़ा सा हो गया पहनेंगे, लेकिन स्टेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप पश्मीना इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप ये डालते हो ना, ये थ्रेड्स लगा के एम्ब्रॉयडरी करते हैं, स्टेपल वगैरह, उसमें अगर कलर वैसे निकल तो शॉल में चला जाएगा, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड हैव अ क्वालिटी थ्रेड फॉर दैट पर्पस, इजंट इट? बिकॉज शॉल आपका है तकरीबन फॉर एग्जांपल 20,000 का, उस पर हमने एम्ब्रॉयडरी की 1 लाख की, है ना, एम्ब्रॉयडरी डिपेंड अपॉन द हाउ मच द क्वांटम ऑफ द वर्क हैज बीन डन। तो जब एक फ्लोइंग वाटर होता है ना, उसमें नहीं घुसता है, स्टेन नहीं होता है। अगर फ्लोइंग वाटर में धोएंगे उसमें स्टेन नहीं लगता। अच्छा, ये निकल जाता है। तब क्या रीजनिंग कैसे जो रंग ते ओके, सो यहाँ पे नहीं रहता, इसीलिए दैट्स द रीजन व्हाई दे वर यूज्ड टू वॉश द पश्मीना शॉल एट द बैंक्स ऑफ द रिवर। ओके, this is new information to me. So but the thing is like this, so we have to get a quality dye, and then to assess the properties of that, we have a machine, we have a system there where we can assess whether what kind of fastness property the fabric is having or yarn is having. Then color coordinates is another thing, वो भी हम दिखाएंगे। color coordinate मतलब वो कि what is kind of a lab color कैसे, for example I always used to give an example to my students who have a red color, ठीक है, we have red color, apple is red, cherry is red, tomato is red, या कोई और भी red है, but it is not same, isn't it? Same क्या था? It is never same. So that coordinates, उसकी जो शेड है वो देखी जाती हैं by assessing these lab color coordinates L, A and B, ठीक है। तो ये भी एक पैरामीटर है जिसकी वजह से आप डाई की शेड डिसाइड कर सकते हो। देन वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट, ये भी एक है कि हाउ मच यू विल फील, जो आप कंफर्टेबल फैब्रिक पहनोगे तो हाउ यू विल फील अबाउट इट। This is how the things are there. I think this is how it is open for discussion. If somebody has any question, we can ask for these things. Rest of the thing is practical में हमें सारा इंशाल्लाह आज से start कर लेंगे practical का क्या करना। बोलिए, any question?